Welcome to my channel. Today we are going to start your topic application of derivatives. In the previous lecture we had completed your differentiability, that is your differentiation part 1, part 2 and part 3. If you like you can watch my that videos, and now we can start the topic application of derivatives with its part 1. So we start with increasing and decreasing functions. For increasing function, f dash x is greater than 0, that is your dy by dx greater than 0, and for decreasing functions we take f dash x less than 0, that is dy by dx less than 0, and if we obtain f dash x equals to 0, that is dy by dx equals to 0, then it is a constant function. We call it a constant function. Then next topic is your equation of tangent. At any point P, x1, y1, we take points x1, y1 at point P. Then y minus y1 equals to dy by dx at point x1, y1, x minus x1. Next, equation of normal at point P with points x1, y1 is your y minus y1 equals to minus 1 over dy by dx at point x1, y1 into x minus x1. And next is your slope of tangent and normal. So slope of tangent is your dy by dx, and we can write it as tan theta. Next is your slope of normal, that is your minus negative sign के साथ upon में dy by dx, and that is your minus cot theta. So now we can do the MCQs based upon this concept, increasing and decreasing functions and your tangents and normals. So start करते हैं, then MCQs. Come to the first MCQ problem. The function fx equals to x square is strictly decreasing in the interval. ये इंटरवल्स गिवन है, क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि क्या है फंक्शन हमें शो करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर विच इंटरवल. तो सॉल्व करते हैं. fx is given your x square, so it's f dash x 2x. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए या डिक्रीजिंग बोल दे, आपका एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, लेस देन 0. और ये लेस देन 0 कौन से इंटरवल के लिए होगा, गिवन ऑप्शंस में से हम चेक करेंगे फॉर विच ऑप्शन इज इट इज लेस देन 0. सो इट इज लेस देन 0 फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0. इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू 0 में ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 2x की, लेस देन 0 ही आएगी. सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर विच इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी टू 0. If we take 0 to infinity, then it is strictly increasing, and if we take 1 to 4, then it is increasing. So we can't show for other intervals that it is strictly decreasing. So in this interval, all the negative values are there. ठीक है, ये ओपन इंटरवल लिया है हमने, तो 0 वैल्यू तो हम लेंगे नहीं. सो बिलो 0 देर आर ऑल नेगेटिव वैल्यूज. सो फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मीन्स लेस देन 0. Then come to next MCQ problem. The function given fx equals to e की 2x is such that a on r, here a refers to, यहाँ हमें a क्या रेफर कर रहा है, strictly increasing, strictly decreasing, neither increasing, not decreasing or decreasing. So फर्स्ट आपको प्रॉब्लम रीड आउट करनी है अच्छे से, देन सॉल्व इट फॉर इट्स सॉल्यूशन. अब fx गिवन है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में, वी टेक एनी x1 x2 belongings to your real number r, okay, and if x1 is less than x2, then 2x1 less than 2x2, or e2x1 is less than e2x2, because if x1 is less than x2, then ax1 is less than ax2 for a is greater than 1. ये होता है आपका, ठीक है. तो इस तरीके से शो करेंगे हम इन प्रॉब्लम्स को, और योर fx1 इज लेस देन fx2. सो इफ फॉर x1 इज लेस देन x2, we prove fx1 is less than fx2. So in this case we have shown that your a refers to strictly increasing. ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं फॉर शोइंग योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस. So for strictly increasing, we take any x1, x2 belongings to R, and if we show for it fx1 is less than your fx2, then it is strictly increasing. So इस ऑप्शन में आपका A रेफर कर रहा है strictly increasing. नेक्स्ट MCQ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. द फंक्शन fx, आपको fx गिवन है, देन x belongings to R is your increasing function, और
इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्वेश्चन में ही हमें बोला हुआ है कि ये क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें चेक करना है इट इज ट्रू, फॉल्स, कांट से, और पार्शियली ट्रू और फॉल्स। तो सोल्व करते हैं। एफ एक्स क्या गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस में, फॉर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, आपको क्या निकालना होता है, फर्स्ट एफ डैश एक्स। तो यहाँ आपका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ओनली लाइन, दैट इज योर ग्रेटर देन 0, सो ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजिंग। यहां से ही हमें पता लग रहा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 4, इफ f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल बी डिफाइंड बाय, आपका एफ एक्स ये डिफाइंड है, देन f हमें शो करना है हैज ए मिनिमम एट x इक्वल्स टू पाई, हैज ए मैक्सिमम, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन और इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सोल्व करते हैं without wasting our time. First we find out its differentiation with respect to x, that is f dash x. सबसे पहले हमें इनके लिए f dash x चेक करना है। So f dash x is 2 minus sin x, और sin x की वैल्यू आपकी कहाँ लाई करती है, -1 और 1 में। रेंज क्या होती है, -1 और 1। सो यहाँ पर क्या आएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी ऑलवेज, सो इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई, ये फंक्शन गिवन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन आर। आपको चेक करना है फॉर विच इंटरवल ये जो फंक्शन है वाई आपका वो इंक्रीजिंग होगा। तो सॉल्व करते हैं। वाई क्या गिवन है, एक्स मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 स्क्वायर, मीन्स y आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय dx, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और अगेन डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कंप्लीट क्या आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई नहीं, डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2। क्लियर। और ये 2 कॉमन ले लेंगे तो, और यहां से आपका x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिमेनिंग बचा x माइनस 2, और यहां से भी क्या आ गया, x माइनस 1। ये आया आपका फंक्शन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या चेक करना है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर विच इंटरवल। तो हमें फर्स्ट इंटरवल्स फाइंड आउट करने होंगे। सो फॉर इंटरवल्स हम क्या करेंगे, जो ये dy बाय dx आपने फाइंड आउट किया है, इसको पुट कर दो 0 के इक्वल। सो आपके x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x विल बी 0, 1 एंड 2। तो अब इंटरवल बनाइए इसके हेल्प से। एक इंटरवल बनेगा 0 से 1, और सेकेंड वन इज योर 1 to 2, और यहाँ आएगा आपका 2 to इंफिनिटी, और इधर हम चेक कर सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0। ये 4 इंटरवल्स बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x, माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, अब इस फंक्शन का साइन चेक करेंगे dy बाई dx का, मीन्स f डैश x का विथ रेस्पेक्ट टू दीज इंटरवल्स। क्या चेक करना है हमें, साइन। तो फॉर साइन, अब देखिए हम इंटरवल्स के लिए साइन चेक करेंगे f डैश x का, फिर बोलेंगे वेदर फंक्शन इज योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट इंटरवल हमने लिया माइनस इंफिनिटी टू 0। माइनस इंफिनिटी टू 0 में आपकी ऑल नेगेटिव वैल्यूज लाई करेंगी, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और ये भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव, अगेन नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट चेक करेंगे इंटरवल 0 से 1 में, 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच में ये क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव। अगेन ये क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव, और ये भी क्या देगा आपका, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 में क्या आएगा, माइनस साइन, मीन्स पॉजिटिव, इट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हम साइन के हेल्प से शो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल लेंगे 1 से 2। अब 1 से 2 के बीच में चेक करिए इसका साइन, तो 1 से 2 के बीच में ये क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अगेन 1 एंड 2 के बीच में लाई कर रही है आपकी वैल्यू, तो क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू, 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव। इट मीन्स क्या है, फाइनल साइन नेगेटिव, मीन्स फंक्शन इज योर
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट इंटरवल चेक करेंगे फॉर 2 to infinity। इस इंटरवल में क्या देगी आपकी वैल्यू, एफ डैश एक्स का क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन, अगेन पॉजिटिव साइन, अगेन पॉजिटिव साइन, मीन्स फंक्शन इज योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपने चारों इंटरवल्स के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यूज चेक कर ली, वेदर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। सो फॉर विच इंटरवल्स इट इज इंक्रीजिंग, हमें इंक्रीजिंग चेक करना था। तो ये दो इंटरवल्स है, एक तो 0 से 1 एंड सेकेंड वन इज योर 2 to infinity, 0 to 1 एंड 2 to infinity। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 2 और ये 0 से 1, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो होगा नहीं, एक्स ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, यहाँ पर रैशनल नंबर ले लिया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना होगा फॉर डिफरेंट इंटरवल्स, देन यू कैन टेक योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है, हमें चेक करना है इज डिक्रीजिंग फॉर विच इंटरवल। सो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स इज 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1। सो फर्स्ट फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा 6x² प्लस 18x प्लस 12। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज डिक्रीजिंग। सो फॉर डिक्रीजिंग वी टेक इट एज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है, मींस एक्स की वैल्यू चेक करनी है कि कौन से इंटरवल के लिए ये वैल्यू आपकी, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। सो यहाँ पर कॉमन टर्म्स देखिए, पहले क्या कॉमन आ रहा है, 6x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए फॉर सॉल्विंग x, यह आएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, और 6 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, ये फैक्टराइज कर लिया हमने फॉर इट्स वैल्यू। सो x की वैल्यू आई आपकी लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू -2। सो इट इज डिक्रीजिंग फॉर विच इंटरवल, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, -2 एंड -1। सो इट इज डिक्रीजिंग फॉर, ठीक है, ये फाइनल आंसर है आपका फॉर द इंटरवल -2 एंड -1। -2 की वैल्यू छोटी होती है, इसलिए फर्स्ट -2 राइट डाउन करेंगे, देन -1। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर x बिलोंगिंग्स टू R द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, बोथ a एंड b आर ट्रू और नन ऑफ द अबव। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू x³ माइनस 6x² प्लस 1 प्लस 2 12x माइनस 18। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 12x, और ये क्या था आपका प्लस 12x, एक एक्स्ट्रा लग गया प्लस साइन बीच में ना, प्लस 12x मीन्स प्लस 12 और माइनस 18। सो ये डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब हमें चेक करना है वेदर इट इज एन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इसको फैक्टराइज करते हैं फॉर टेकिंग x वैल्यूज। सो ये 3 कॉमन आ रहा है आपका, x² माइनस 4x प्लस 4। सो ऑन फैक्टराइजिंग क्या आएगा, x² माइनस 3x माइनस x, ओके, ये प्लस 4 इज देयर, प्लस 4 मीन्स आपको यहाँ फैक्टराइज करना है, -6x और एक मिनट माइनस, ये तो सिंपल बन रहा है आपका ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये क्या आया आपका, एफ डैश एक्स 3 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से हम चेक करेंगे कि वेदर इट्स साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये क्या है आपकी पावर इवन है, सो इट विल गिव ऑलवेज योर पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स ये क्या देगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। तो रॉन्ग है, डिक्रीजिंग तो होगा नहीं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, रॉन्ग, नन ऑफ द अबव, रॉन्ग। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिक्रीजिंग। इंटरवल गिवन है, हमें चेक करना है विच ऑफ द फंक्शंस इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2।
सो आपको फंक्शन गिवन है sin 2x, tan x, cos x एंड cos 3x। तो चेक करना है हमें विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इंटरवल गिवन है आपको 0 से π/2। इफ वी टेक fx इक्वल्स टू cos x, बिकॉज इट्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आता है, विथ नेगेटिव साइन, sin x, इट गिव्स माइनस ऑफ sin x, सो इट इज ऑलवेज लेस देन 0। ये क्या आएगा आपको, लेस देन 0 आएगा। सो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9। द फंक्शन fx इक्वल्स टू 10x माइनस x, हमें चेक करना है इज ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस और नेवर इंक्रीजेस और समटाइम्स इंक्रीजेस एंड समटाइम्स डिक्रीजेस। सॉल्व करते हैं। fx is given as 10x minus x. So first check out its derivative, that is your secant square x minus 1. अब ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, always greater than 0. So it is an increasing function, always increases. तो अभी तक आपने देखा कि जितने भी हमने एमसीक्यू सोल्व किए आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे, फर्स्ट वी फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी कैन चेक इट वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. इफ ग्रेटर देन 0 देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स लाइक दिस. नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन योर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ओके, हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1 1. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P x1 y1 हमने नोट डाउन किया था. क्या होता है आपका x माइनस x1 इक्वल्स टू dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1 मल्टीप्लाई विथ y माइनस, ये आपका y माइनस y1 यहाँ आएगा और x माइनस x1 यहाँ आएगा. ठीक है, इस तरीके से y माइनस y1 इक्वल्स टू dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx. सो dy बाय dx यहाँ क्या हो जाएगा 2x. ओके, एंड एट पॉइंट 1 1, एट पॉइंट 1 1 इट इज 2. क्लियर. अब इक्वेशन निकाल लीजिए डायरेक्ट. y माइनस y1 मीन्स 1 और ये आपका 2 और x माइनस 1. सॉल्व इट एंड देन चेक योर आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस. इसको सॉल्व करिए. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 और योर 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये आपका आंसर आएगा. ऑप्शन में आपको गिवन है 3x3 x3 x3 और हमारा आंसर आ रहा है 2x. एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन को. ये आपका आंसर ठीक है, करेक्ट है. ठीक है, अपना ऑप्शन एक करेक्ट कर लीजिए, देन आपका आंसर मैच हो जाएगा. तो यहाँ हम लिखेंगे 2x माइनस y इक्वल्स टू 1. सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये आपके ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ हो गया था. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2x माइनस y इक्वल्स टू 1. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फॉर द कर्व. सो नॉर्मल में आपको पता है हम स्लोप क्या लेते हैं, -1 ओवर dy ओवर dx. यही चेंज है, अदरवाइज तो आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सेम है. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1 y1 p पे क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 ओवर dy ओवर dx इंटू x माइनस x1. सो फर्स्ट y आपको गिवन है x क्यूब प्लस 1. सो फर्स्ट वी फाइंड dy ओवर dx, ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर. अब पॉइंट क्या गिवन है, एट पॉइंट 1 0. सो एट पॉइंट 1 0 क्या हो गया, ये 1 0 पे 3 क्या आ गई आपकी स्लोप 3. और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी आपकी y माइनस y1 मीन्स 0 -1 ओवर 3 और x माइनस x1. तो इसको सोल्व कर लो फर्दर. 3y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 3y इक्वल्स टू 1.
तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये चेक करेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। So equation of normal is nothing but y minus y1 equals to minus 1 over dy over dx into x minus x1. So first we find out dy by dx at the point 1 0 that is given. So then you can find out equation of normal and that is your x plus 3y equals to 1. So option A is correct for question number 2. Then come to next problem. Next देखें क्वेश्चन नंबर 3, find the slope of the normal to the curve. We have to find out slope of the normal to the curve at theta equals to pi by 4. ठीक है, तो चेक करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको अच्छे से पता है क्या होता है, नेगेटिव साइन ऑफ 1 ओवर dy ओवर dx। सो फर्स्ट हमें डेरिवेटिव निकालना होगा dy बाय dx। सो यहाँ पर x और y आपके थीटा में गिवन है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। सो dx और d थीटा क्या जाएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका a cos क्यूब थीटा। अब ये x की पावर n लेंगे इसको। सो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1। सो ये आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा को, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको y देखो, y क्या गिवन है, y है a साइन क्यूब थीटा। अब इसका भी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन cos थीटा। क्लियर, अब इससे निकालेंगे फर्दर नेक्स्ट योर dy बाय dx। सो dy बाय dx क्या हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन है ना एक, तो पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या करते थे हम, एक फंक्शन का दूसरे के साथ में डिफरेंशिएशन निकाल के देन डिवाइड कर देते थे जो हमें रेस्पेक्टिव रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे dy ओवर थीटा ओवर dx बाय d थीटा और dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा बाय dx। सो ये आ जाएगा आपका dy बाय d थीटा है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन में आ गया 3a कोस स्क्वायर थीटा, नेगेटिव साइन है और ये साइन थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, रिमेनिंग इज माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। और ये आ गया आपका dy बाय dx दैट इज योर माइनस टेन थीटा। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस 1 ओवर dy ओवर dx दैट इज योर माइनस 1 ओवर टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू किस पे चेक करनी है हमें, एट पाई बाय 4। सो एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 रख दीजिए। पाई बाय 4 पे टेन थीटा क्या देता है, 1। सो योर आंसर विल बी माइनस 1 ही आएगा ना, माइनस 1। ये माइनस टेन थीटा तो ऑलरेडी था ये, और ये नेगेटिव में था, ये नीचे माइनस टेन थीटा प्लस 1 आंसर आएगा। क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस साइन माइनस कैंसिल आउट और प्लस 1 आंसर इज रिमेनिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सोल्व करोगे इसको फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट मीट्स एक्स एक्सिस एट, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट मीट्स एक्स एक्सिस एट। तो इसको करते हैं सोल्व देन फर्दर। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। y क्या गिवन है, e की पावर 2x। द टेंजेंट टू द कर्व मीन्स dy बाय dx निकालेंगे, दैट इज योर e 2x और ये 2x का क्या जाएगा 2। अब एट द पॉइंट बोला है 0 1, तो 0 1 पे ये क्या हो गया, पुट कर दो वैल्यू, ये e 0 इज योर 1, सो ये 2 आ जाएगा। अब द टेंजेंट टू द कर्व, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे, फिर वो क्या होता है आपका y माइनस y1 मीन्स y माइनस 1, 2 इंटू में x माइनस x1 मीन्स 0, सो ये आ गया y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द टेंजेंट टू द कर्व निकाल लिया हमने, मीट्स एक्स एक्सिस। अब वो एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है, इट मीन्स आपका y कोऑर्डिनेट क्या है वहां पर 0, मीट्स
एक्स एक्सिस दैट इज y क्या है 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से टेंजेंट से, ये आ जाएगा आपका 0 - 1 2x और x इक्वल्स टू -12। सो आपके कोऑर्डिनेट्स पूछे थे तो ये वैल्यू हो जाएगी -12 और 0, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सोल्व करेंगे आप अपने टेंजेंट और नॉर्मल्स के क्वेश्चंस को। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर वॉचिंग मोर एंड मोर वीडियोज बेस्ड ऑन योर टर्म 1 सिलेबस। सो थैंक यू सो मच।